Good morning, students. It's really very pleasant that we are together once again here. As we know that the whole world is suffering from COVID-19, and this is our foremost duty to follow the instructions given by the government. My advice that you all must follow the instruction given by the government, but we all are trying our best that we won't we will try our best that you won't suffer from your study. That's why I am here to introduce a very vital topic known as trigonometry. And the importance of trigonometry is so high that this is not only for class 10th, but it is also for 11th and 12th. Not only 11th and 12th, but it is also going to be helpful in your competitive examination. So my request to all of you that whatever I am going to teach, you take it very seriously. If you take it very seriously, I am very much sure that it would be very lenient topic for all of you. So, ट्रिग्नोमेट्री के विषय में आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैंने एक नया फॉर्मूला निकाला है, एक नया मैंने संदेश बच्चों को दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ ट्रिक। ये सिर्फ ट्रिक का चीज है, लेकिन ये इसके विषय में यदि आप अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हायर क्लासेज में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूला ज़्यादा रखने के 5, 7, 10 फॉर्मूला है जो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और आप उसी के बलबूते पर आप इस पूरे टॉपिक को आप बना सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग का जो टॉपिक है उसको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर किया जाता है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कैसे बनता है। पहले कैसे बनता है, यदि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल यदि 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ देखिए एंगल भी 90 डिग्री का है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं पीक्यूआर। पीक्यूआर में देखते हैं पीक्यू का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, क्यूआर का 4 सेंटीमीटर एंड पीआर का 5 सेंटीमीटर। ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है इसको पहले हमको देखना है। तो देखिए सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आप पाते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर करते हैं तो आप देखते हैं ये 16 सेंटीमीटर हुआ, और 3 सेंटीमीटर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 9 सेंटीमीटर आया। आप देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो भी डाटा किसी ट्रायंगल में दिया रहे यदि इस नॉर्म को फॉलो करे तो वह भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसलिए एबीसी और पीक्यूआर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब जहां तक राइट एंगल ट्रायंगल के समझने का प्रश्न है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। नाउ बिफोर कमिंग टू द टॉपिक I would like to say that what is ratio. Whenever we compare two things by means of division, we say that they are in ratio. In trigonometry, first of all, we will learn about trigonometric ratios. Let us see.
These are called angles. There are 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Reciprocal of sin theta is cosec theta, reciprocal of cos theta is sec theta, and reciprocal of tan theta is cot theta. Now, here theta indicates angle. Without angles, sine, cos, tan, cosec, sec, cot, all are valueless. So we can have A, B, C, P, Q, R, alpha, beta, gamma, theta, phi. Whatever angle you would like to have, we can consider it. But without angle, these all T ratios are valueless. Now, in right angle triangle, ABC, angle A and angle C are called acute angles. We can consider only acute angles. We cannot consider here this angle B, which is 90 degree. We can only consider acute angles. Now, how will you find the value of sin theta? What is the value of sin theta? What is the value of cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta? There is a poem by which, by using the same, you can remember the value of sin theta, cos theta, tan theta, etc. देखो, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना शुरू करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकालना। ये बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी पढ़ रहे हो और यदि इसका तुम वैल्यू अभी निकालना आसानी से जान गए तो हम बतलाते हैं कि इंटर में यदि जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और उनको बहुत आसानी से वो लड़का बना सकता है। इसलिए इसका वैल्यू कैसे निकलता है और क्या होता है इसकी जानकारी तुमको बहुत आवश्यक है। मैंने तुमको पहले ही कह दिया है, यदि एंगल ए को लोगे तो उसके ठीक सामने साइड BC वो परपेंडिकुलर होगा और एंगल बी 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। अब बच गया AB, तो AB मेरा हो जाएगा बेस। उसी तरह फिर यदि हम एंगल C को कंसीडर करेंगे तो C के ठीक सामने में AB आता है, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा तो BC हो जाएगा मेरा बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज AC ही बना रहेगा। तो इसका मान सबसे फिर मैं बतला देना चाहता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी टी रेशियोज हैं उनको तुम अभी अच्छे ढंग से जान जाओ तो हायर क्लासेस में भी एक ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझने में काफी आसानी होगी। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ इसका मान, कैसे क्या क्या निकालना होता है ये तुम देखो। ये याद करना होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का होता है B/H बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा का होता है P/B परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा हमने अभी बताया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, इसलिए कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा H/P। सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यदि हम कर देंगे तो
एच बाई बी कर देंगे तो उसका निकल जाएगा, और लास्ट में क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी। यदि ये फर्स्ट तीन तुमको याद हैं तो ये तीनों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, याद करना भी नहीं है, तुम जाते जाओगे बनाते जाओगे सवाल, ये सारा का सारा तुमको खुद ब खुद याद आएगा। वैसे बहुत सारे आते हैं, कविता हैं, बहुत लोग बनाए हुए हैं जिसके थ्रू तुम अगर भूल जाते हो परीक्षा हॉल में तो वो भी तुम लिख से वो तुम देख सकते हो। जैसे देखो, जैसे हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। अब देखो, पंडित होता है पी से, हर होता है एच से, बद्री होता है बी से, हर होता है एच से, और प्रसाद होता है पी से, और बोले होता है बी से। तो देखो ये साइन थीटा का निकल गया पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, और टेन थीटा का हो गया, ये तीनों का मान निकल गया। ये तीनों का मान तुम जान गए तो हम इससे आगे इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे कि सबसे पहले तुमको इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है कि इसका वैल्यू क्या होता है। अगर एक बार तुम जान गए तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। ये बहुत ही बेस है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, सिर्फ 10th में नहीं बल्कि ये तुम्हारे आगे हायर क्लासेस के लिए भी। इसलिए पहले तुम इसको ये जान लो, सिर्फ देखना है कि किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है, जो साइड होता है वो 90 डिग्री एंगल के सामने का साइड वो हाइपोटेनस होता है, वो सबसे लंबा साइड होता है, और जो रेस्ट तीसरा बच गया वो बेस होगा। तो इसको पहले जानो, फिर नेक्स्ट क्लास में तुमको हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।